اپنے آفس سے نکلتا شاہزیب فرحان خان، گوری رنگت 6 فٹ سے نکلتا قد، مگر غرور اتنا کہ نیلی آنکھوں سے بھی روایت کی داستان سناتی ہو، اکڑ پن اتنا کہ جیسے کھڑی پتلی خوبصورت ناک پر ہر وقت غصے سے اور کھڑی ہو گئی ہو۔ عورت ذات سے اتنی نفرت کہ اپنے آفس میں ایک بھی فیمیل ورکرز نہیں تھی۔ شاید ہی کوئی کسی سے اتنی نفرت کرتا ہو جتنا شاہزیب فرحان خان صفت نازک سے کرتا تھا۔ ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی، 3 پیس سوٹ پہنے جیسی ہی اپنی میٹنگ کے لیے ہوٹل میں پہنچا، ہوٹل میں بیٹھے لوگ مڑ مڑ کر اس واضحیت کے شاہکار کو دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے ہوٹل سے نکل کر ابھی ریسپشن تک پہنچا تو دیکھا وہاں بھیڑ بہت تھی اور ایک لڑکی خوب ہنگامہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اپنے پرسنل سیکریٹری زمان سے شاہزیب فرحان خان نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سر، ایک لڑکی ہے، اس ہوٹل میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی، کوئی ورکر اس سے بدتمیزی کرنے لگا، بس۔ پھر کیا تھا؟ اس نے رکھ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ زمان چلتے ہوئے اپنے باس کو بتا رہا تھا، تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ہم لڑکی ہیں تو کمزور ہیں، ایسا سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ اور مجھے تو بالکل بھی نہیں، شیرنی ہو شیرنی، ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ اسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی، ہاں ہاں ہاں، لڑکی سچ میں شیرنی ہے سر۔ زمان کتنی بار کہا ہے مت نام لیا کرو عورتوں کا، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت بے وفا ہوتی ہیں، انہیں صرف پیسے سے محبت ہوتی ہے، صرف پیسہ دو اور یہ بک جائیں گی، اپنا گھر فیملی سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ زمان نے اپنے سر کو دیکھا، نیلی آنکھوں میں درد، نفرت، غصہ، کیا کچھ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں جیسے بہت درد چھپا ہو۔ یا رب ان کی زندگی سے نفرت کو نکال دے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایسا بھیج دے جو انہیں محبت کرنا سکھا دے۔ زمان نے دل سے دعا دی، سر آفس چلیں؟ نہیں، گھر چلو، بابا اکیلے ہوں گے۔ حرم، رک جاؤ یار، سنو تو تمہیں کیا ضرورت تھی ہوٹل میں اتنا ہنگامہ کرنے کی؟ اچھا تو کیا میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیتی کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا؟ اچھا چھوڑو، اب کیا کریں؟ کچھ نہیں، گھر چلیں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ صبا، اماں کو آج کی بات مت بتانا، انہیں تو اماں پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گی، شادی کرنے لگتی ہیں۔ مین روڈ پر کھڑے ہو کر حرم صبا کو سمجھا رہی تھی، کل جو تیرا انٹرویو ہے تو دے گی نا؟ ہاں یار، جاؤں گی، دعا کرنا جاب مل جائے۔ انشاءاللہ مل جائے گی، صبا نے دل سے دعا دی۔ انڈیا کے صوبے اتر پردیش کے شہر کانپور میں شہباز خان اپنی ماں اور اپنی اور بیٹی حرم کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا اپنا خود کا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ حرم 2 سال کی تھی تبھی اس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ حرم کی پرورش اس کی ماں یعنی دادی نے کی تھی۔ شہباز خان کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جہاز سے جا رہے تھے کہ جہاز کرش ہو گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ اس وقت حرم 15 سال کی تھی۔ اماں نے خود کو اور حرم کو سنبھال لیا، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ کاروبار پر شہباز خان کے مینیجر فاروق قریشی نے اپنا قبضہ کر لیا۔ اماں کے خاندان سے کوئی تھا نہیں جو ان کا ساتھ دیتا۔ فاروق قریشی کی گندی نظر اب حرم پر تھی، اسی لیے اماں کو اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہیں انہوں نے کرائے پر گھر لیا اور حرم کو پڑھانا شروع کر دیا۔ حرم کی دوستی صبا سے وہیں ہوئی تھی، دونوں بیسٹ فرینڈ تھیں۔ حرم اپنی پڑھائی پوری کر لی تھی اور اب جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ شہباز خان نے اماں اور حرم کے اکاؤنٹ میں رقم ڈالی تھی تو اب تک اسی سے کام چلا تھا، لیکن اب اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، انہیں اچھے علاج کی ضرورت تھی۔ اسی لیے حرم آج ہوٹل میں جاب اپلائی کیا اور وہاں بھی بات نہیں بنی۔ اب اگلے دن ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب انٹرویو دینے جانا تھا۔ سفید پینٹ، اس پر پیلے رنگ کا کاٹن کا فراک پہنے، پیلے اور سفید سنیکر پہنے، بالوں کی پونی بنائے، سفید حجاب لگائے، اپنی اسکوٹی لے کر اپنی جاب انٹرویو کے لیے نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ نہیں اماں، دیر ہو رہی ہے۔ خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ صبح کا وقت ہوتا ہی آب دھڑا پیکا ہے، جیسے روڈ پر گاڑیوں کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ تبھی ایک 4 وہیل پیچھے سے آ کر حرم کی اسکوٹی کو ٹکر مار دی۔ اوے، سڑک کو اپنی جاگیر سمجھنے والے، نکلو باہر! میری اسکوٹی کو ٹکر مار دی، اس میں اسکریچر پڑا ہے، اس کا کیا؟
हरम गुस्से से टक्कर मारने वाली गाड़ी को देखने लगी। मैम सॉरी, आगे बूढ़े बाबा जी को बचाने के चक्कर में लग गई। वाह वाह, ये अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा काम किया है, अपना सॉरी छोड़कर चले गए हैं आप जैसे लोगों के लिए। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और शाहजेब फरहान खान बाहर निकला। जमान कितनी बार समझाया है इन लोगों से इन्हीं के लहजे में बात किया करो, इनकी औकात नहीं होती कि कोई इनको इज्जत दे। शाहजेब फरहान खान ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। ये लो पैसे, अगर कम लगे तो और दे देता हूँ। हरम हुनको की तरह एक बार इन पैसों की गट्ठी को देख रही थी, एक बार शहजाब खान फरहान खान का चेहरा। देखिए मिस्टर एक्स वाई जेड, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गलती आपकी है और एटीट्यूड भी आप मुझे दिखा रहे हैं। हरम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी शाहजेब फरहान खान गाड़ी में बैठा और चला गया। हैं ये क्या, ये तो अजीब इंसान थे, एक तो गलती भी इन्हीं की थी और वो और स्टाइल मार गए मेरे सामने। आप मिले मुझे, अगली बार मैंने आपको अच्छे से ना बताया तो मेरा नाम भी हरम नहीं। हरम पैसे बैग में रखकर इंटरव्यू देने चली गई। ऑफिस में जाते ही रिसेप्शन पर पूछकर तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तीसरे फ्लोर पर जाने के बाद वहां काम कर रहे लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं कोई दुनिया का आठवां अजूबा तो हूँ नहीं जो लोग ऐसे देख रहे हैं। मैम आप। जमान अपने सामने वही रोड वाली लड़की को देखकर हैरान से ज्यादा परेशान हुआ था। हाँ मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, लेकिन मैम आप इंटरव्यू नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? हमारे ऑफिस में फीमेल वर्कर्स काम नहीं कर सकती, लेकिन ऐड में तो ऐसा कुछ नहीं था। देखें आप, एक तो मेरी सुबह ख़राब कर दी आपने और इस खड़ूस इंसडियल इंसान ने, और मुझे इंटरव्यू भी नहीं देने दे रहे। मैं बिना इंटरव्यू दिए कहीं नहीं जा रही। तभी जमान का मोबाइल बजा। जमान बारी बारी अंदर भेजो। मैम आप अंदर जाएंगी और मैं इस ऑफिस से बाहर जाऊंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप जाएं। जैसे ही हरम अंदर गई जमान हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा। यार अब मेरी नौकरी बचा दे। जमान क्या हुआ अंकल आप? हाँ अब तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे क्या? नहीं अंकल, अभी थोड़ी देर बाद आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। जमान रोनी शक्ल बनाकर बोला। क्यों अंकल, आप अंदर मत जाएं। अंदर अभी WWE होगा। है आए, मैं आपको दिखाता हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा और पैसे चाहिए? हरम को अपने ऑफिस में देखकर पहले तो गुस्से से शाहजेब फरहान खान खड़ा हो गया। नहीं मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, हरम मासूम बच्चों की तरह बोली। लेकिन सामने तो कोई पत्थर दिल इंसान था जिसे किसी के साथ जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जमान अंदर आओ। जी सर। ये क्या है? सर मैंने तो ऐड के लिए सब सही दिया था, पता नहीं कैसे मेल की जगह फीमेल हो गया। जमान, धाड़ की सूरत में जमान का नाम लिया गया। सॉरी सर, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, तुम जाओ। आप क्या खाते हैं? हरम ने मासूमियत की इंतहा कर दी। यू आर मैड। शाहजेब फरहान खान ने नजर उठाकर सामने देखा। अन गुलाबी गोरी रंगत, छोटी सी खूबसूरत नाक, कटीली आंखें, गुलाबी खूबसूरत होंठ। शाहजेब फरहान खान की नज़र पलटने से इनकारी हो गई। शाहजेब ने सर झटक कर दूसरी तरफ नज़र कर ली। मैं क्यों मेड आप मैड? मैं क्यों मैड? आप मैड? आपका पूरा ऑफिस मैड? आप क्या मुझे नहीं रखेंगे? मुझे खुद इस मनहूस ऑफिस में काम नहीं करना। और सुबह आपने जो पैसे मेरे मुंह पर मारे थे ना, इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको है। रखे उसे और ठंडा मंगवा कर पी लीजिएगा। आपके मुंह से आग निकलती है डायनासोर की तरह। ये लफ्ज़ मुंह में बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। इधर फरहान खान इसकी तेजी देखता रह गया। हरम जैसे ही शाहजेब फरहान खान के ऑफिस रूम से बाहर निकली, तभी एक बहुत सुपर से आदमी सामने आ खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप तो बहुत जा जाजबाज जान जनबाज हो। मेरी बेटी की बोलती बंद करवा दी, जो आज तक कोई नहीं कर सका वो आपने कर दिया। शाबाश बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी अपने बेटे जैसा नहीं हूँ।
वालेकुम अस्सलाम अंकल, आप तो सच्ची बहुत अच्छे हैं, पर आपके बिगड़े नवाबजादे किस पर चले गए हैं? फरहान खान मुस्कुराते हुए हरम को देख रहे थे। बेटा, क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करेंगी? मैं फरहान खान आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाथ बढ़ाकर हरम ने इनका हाथ थाम लिया। शुक्रिया बेटा, आपका वो खड़ूस घमंडी बेटा तो मुझे डांटने का कोई ठेका ले लिया है। बेटा हरम, आप परेशान ना हो, मुझे जमान ने सब बता दिया है। अंकल, मुझे उस मनहूस ऑफिस में काम ही नहीं करना, मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी। हरम ने नाक चढ़ाकर अपने बयान जारी रख किया। नहीं, आप इसी ऑफिस में जॉब करोगी। आप ये मत समझना कि आपको ऐसी ही जॉब मिल गई है, बल्कि आपको एक बड़े वादे के साथ जॉब मिल रही है। अंकल, कैसा प्रॉमिस? पर मैंने तो अभी तक कोई प्रॉमिस ही नहीं किया। बेटा, थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ यहाँ पर। मुझे ज़रूरत है आपकी। आपके मुताबिक मेरे बिगड़े नवाबजादे को सुधारने के लिए, और ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। प्लीज़ बेटा, मत करना। ठीक है अंकल, आपको कभी मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। हरम ने दिल से वो वादा किया, ये जाने बगैर कि आगे ज़िंदगी पता नहीं कहाँ ले जाने वाली है। अंकल, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ज़मान समझने की कोशिश कर रहा था। ज़मान समझाने की कोशिश कर रहा था। ज़मान, तुम कुछ नहीं बोलोगे, और तुमने देखा ना, वो मेरे बेटे से बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। शाह से आज तक बिना डरे किसी ने जवाब नहीं दिया। अब जाकर कोई टक्कर की मिली है। तुम यहीं रुको, मैं ज़रा अपने बेटे से जंग जीत कर आऊँ। फरहान खान अपने बेटे के ऑफिस रूम में जैसे ही इंटर हुए, शाह उठकर खड़ा हो गया। बाबा, आप यहाँ? आज तो आपको कहीं और जाना था ना? हाँ, जाना तो था, पर किस्मत को कुछ और मंजूर है, इसीलिए यहाँ चला आया। क्या मतलब बाबा? कुछ नहीं, तुम इंटरव्यू ले रहे हो? हाँ, लेकिन मैंने इस सीट के लिए किसी को सिलेक्ट कर लिया है। तुम रुको, मैं अभी अपॉइंट लेटर बनवा कर लाता हूँ, तुम सिग्नेचर कर देना। पता नहीं किसको बाबा ने सिलेक्ट कर लिया। हरम शहबाज खान, बाबा हमारे साथ में कि शाहजेब फरहान खान की आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाबा, उससे फौरन निकालें। वाह वाह लाडले, क्या बात है, एक दिन की मुलाकात में नाम भी याद हो गया। बाबा, आप समझने की कोशिश करें, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मेंस तो उसमें छू कर नहीं है। एक नाम की मुंह फट और बदतमीज लड़की है। शाहजेब फरहान खान गुस्से से दांत कुचकाते हुए फरहान खान से शिकायत कर रहा था। एक मिनट बेटा जी, आप मेरे ही सामने मेरी दोस्त को खराब बना रहे हैं। ये सही बात नहीं है, और जहाँ पर तो आपको उससे रखना ही पड़ेगा। बाबा, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। आपकी कोई बात टालना मेरे लिए गुनाह के बराबर है। मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं टालूंगा, लेकिन मैं एक मौका दे रहा हूँ। इस एक हफ्ते तक अगर वो टिक गई इस ऑफिस में, तो मैं उसको जॉब दे दूंगा। ठीक है बेटा, आपकी शर्त मंजूर है। मेरी दोस्त शेरनी है। शेरनी तुमको पिछाड़ेगी और टिक कर दिखाएगी। बाबा, मुझे इससे रेसलिंग थोड़ी करनी है। जी बेटे जी, बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फरहान खान के जाने के बाद शाहजेब फरहान खान ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर अपने आप को ठंडा किया। हरम शहबाज खान, बहुत शौक है ना पंगे लेने का। अब पता चलेगा कि बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। गार्ड्स गाजियाबाद शहर के बीचों बीच खानवाला बड़ी शान के साथ खड़ा था, जिसमें फरहान खान अपने बेटे शाहजेब फरहान खान के साथ और मील नौकरों की फौज के साथ रहते थे। फरहान खान की चचेरी बहन रफ़त और उनकी बेटी नादिया भी अपने घर से यहाँ आकर कभी कभार रह लिया करती थी। हरम जैसे ही घर पहुंची तो सबा आकर बैठी हुई थी। ओए सबा, तुम कब आई? मैं तो बहुत देर की आई हुई हूँ। तू बता, जॉब मिली? हरम ने सुबह को सारी बात बता दी। हरम की बच्ची बेड़ा गर्क, कितनी बार समझाया है कि ना लिया कर पंगा, लेकिन तेरी माती मारी गई है। देख दादी अम्मा, तेरे आगे मेरे ये बुढ़े हाथ, तू अपना लेक्चर बंद कर और मेरे लिए कुछ खाने को ला। भुक्खड़ कहीं की लाती हूँ। अगले दिन हरम जैसी ही ऑफिस पहुंची, जमान ने उसे उसकी सीट बता दी और थोड़ी देर बाद फाइलों का अंबार लाकर रख दिया। सर ने कहा है कि
ان ساری فائلوں کی ایک ایک کر کے فائل کاپی کر دیں۔ حرم نے جیسے ہی منہ کھولا کچھ کہنے کے لیے، زمان نے اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا۔ حرم، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ سکتی ہیں۔ شکریہ میرا بھائی بننے کے لیے، لیکن میں آپ سے ایک راز کی بات بتا رہی ہوں۔ یہ جو آپ کے باس ہیں نا، ان کا نام شاہ زیب فرحان خان نہیں بلکہ سائیکو فرحان خان ہونا چاہیے۔ حرم، اپنے جو منہ کے زاویے بگاڑ کر جیسے زمان کے نالج میں اضافہ کیا گیا ہو۔ زمان اپنی مسکراہٹ دبا کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ میں تو یہاں سے کھسک رہا ہوں، ورنہ اگر سر نے مجھے دیکھ لیا نا، ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان سازش کو سننے میں میرے گنہگار کان بھی شامل تھے، تو سر نے میرا بتھا بنا دینا ہے۔ جلال تو کا وار کرتے ہوئے زمان وہاں سے چلتا بنا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن شریف میں بنت ہوا کے لیے سورۃ النساء نازل کی ہے اور کہا ہے، اے ابن آدم، کبھی بنت ہوا کی بےزتی نہ کرنا۔ لیکن وارے انسان اپنی نفرت انا کے چکر میں عزت کا عین بھی نہیں سمجھتے۔ سوادے انسان مجھے ذلیل کی اور انکل کے ساتھ میری اتنی چھوٹی خوبصورت ناک کٹوانے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ نہ میں نے یہ کام شام تک پورا کر کے آپ کی جو پتلی کھڑی خوبصورت ناک ہے نا، اسے کٹوا دینا ہے۔ حرم، تصور میں شاہ زیب فرحان خان کی کٹی ناک دیکھ جلدی سے استغفار پڑھنے لگی۔ یا اللہ، میں یہ کیا اول فول سوچ رہی ہوں، مجھے اپنا کام ختم کرنا ہے، ورنہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، بہت محنت کروں گی۔ وہ 2 فائلیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنی فائل دکھانے کے لیے شاہ زیب کے آفس روم کے باہر کھڑی ہو کر دروازہ بجایا۔ یس، کم ان۔ حرم جیسے ہی اپنا پیر اندر رکھنے لگی، تبھی اپنے لیپ ٹاپ میں بزی شاہ زیب فرحان خان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ خبردار، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے تمہیں بلایا نہیں، نہ نکلو۔ سر، میں یہ فائل دکھانے آئی تھی کہ ٹھیک ہے یا نہیں، تمہیں جو بھی دکھانا ہو تم زمان کو دکھا دینا، لیکن میرے آفس میں قدم مت رکھنا۔ حرم اپنا منہ کھولے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اچھا، مجھ سے ایٹیٹیوڈ ابھی بتاتی ہوں۔ سر، آپ کی آفس میں سونے اور ہیرے نہیں جڑے ہیں جو میں جھاڑ کے لے کر چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس منحوس آفس کا دیدار کرنے کا ہوں، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ حرم منہ ٹیڑھا کر کے لمبی سی جھاڑ کے آفس روم سے واک آؤٹ کر گئی۔ شام تک بنا لنچ کیے وہ اپنا کام ختم کر کے زمان کو دیکھ کر گھر چلی گئی۔ اماں، آپ کہاں ہیں؟ حرم، کیا شور کیا ہوا ہے؟ لو پانی پیو۔ اور کیسا رہا پہلا دن؟ اماں، اچھا ہی گزرا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا انکل کے بارے میں۔ اماں، وہ تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا بیٹا اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اماں اتنے خڑوس ہیں کہ کیا بتاؤں۔ لیکن اماں، ایک بات بتاؤں، پورے آفس میں ایک اکیلی لڑکی ہوں، لیکن سبھی لوگ بہت عزت دیتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے مجھے دیکھتی آنکھ اگلنے لگتے ہیں۔ ان کی جو بیوی بنے گی نا، وہ تو بیچاری سر پکڑ کر روئے گی۔ حرم، کسی کے بارے میں اتنی جلدی رائے نہیں قائم کرتے، کیا پتہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ اور ذات سے نفرت کرنے لگا ہو۔ بیٹا، ہر کسی کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو وہ ہر کسی کو نہیں بتاتا۔ جو کوئی اس کی زندگی میں خاص ہوتا ہے، اسی کے آگے اپنا دل کھول کر رکھتا ہے۔ بیٹا، کسی کی زندگی میں نہیں جھانکتے۔ اچھا میری پیاری اماں۔ اسی طرح 2 دن اور گزر گئے۔ اگلے دن چھٹی تھی اور اچانک اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حرم انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگی۔ انہیں تورنت ICU میں بھرتی کر لیا گیا۔ حرم اکیلے ہاسپٹل کے بینچ پر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بیٹھی تھی، تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ حرم دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر، اماں کیسی ہیں؟ بیٹا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمیں ان کی سرجری کرنی پڑے گی، آپ پیسوں کا انتظام کر دیں۔ ڈاکٹر، آپ سرجری کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں۔ حرم بینچ پر بیٹھ کر زاروں کے دار روتے ہوئے سوچ رہی تھی پیسے کہاں سے لوں، اور اگر پیسوں کا انتظام نہیں کر پائی تو نہیں، اس سے آگے حرم سوچ نہیں پائی۔ یا رب العزت، میری اماں کو صحت و تندرستی عطا فرما، میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فرحان خان ہاسپٹل میں اپنے روٹین چیک اپ کے لیے آئے تھے، لیکن جیسی کوارٹر میں نظر پڑی تو ایک لڑکی بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔
उस पर उन्हें हरम का गुमान हुआ। नज़दीक जाकर देखा तो हरम ही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। हरम बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, हॉस्पिटल में कैसे? हरम की नज़र जैसी फरहान खान पर पड़ी तो अपने जज्बात पर काबू ना रख पड़ी और दौड़कर इनके सीने से लग गई। दोस्त, मेरी अम्मा बीमार है, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, आप दुआ करें मेरी अम्मा ठीक हो जाए। फरहान खान इसकी पीठ थपथपाते हुए उसे शांत किया। बेटा मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। फरहान खान उसे बेंच पर बिठाकर डॉक्टर से मिलने चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो हरम के इस पास बैठ गए। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि हरम से पेशेंट मिलना चाहती है, बेटा आप अंदर जाओ। हरम जैसी ही अंदर गई, हरम ने हाथ उठाकर उसे अपने पास बुला लिया। हरम आंखों में आंसू लिए उसके पास गई। हरम बैठो, तुम्हारे पास मुझे तुमसे बात करनी है। तुम बहादुर शेरनी हो, तुम किसी से नहीं डरना। आगे जिंदगी में बहुत मोड़ आएंगे लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, अल्लाह पर भरोसा रखना और अपनी उम्मीद कभी टूटने मत देना। अम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तभी हल्का सा दरवाज़ा नॉक हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फराह खान ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। हरम कौन है बेटा? अम्मा दोस्त अंकल हैं, अंदर बुला लो। दोस्त अंदर आ जाएं। हरम ने इन्हें अंदर बुलाया। फरहान खान जैसे ही अंदर आए इनकी नज़र अम्मा पर पड़ी और वहीं ठप खड़े हो गए। अम्मा आप और शहबाज कहाँ हैं? फरहान बेटा इतने दिन बाद तुम्हें देखकर आज यकीन हो गया कि अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। फरहान खान को अम्मा ने शुरू से आखिर तक सब बता दिया। हरम यहाँ आओ बेटा, फरहान तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। कॉलेज में जब तक पढ़ते थे दोनों का बहुत घर आना जाना था। फिर हम कानपुर शहर चले गए तो सब छूट गया और आज मुलाकात हुई। हरम जैसे ही पलट कर अपने दोस्त की तरफ देखा तो इनकी आंखों से आंसू जारी थे। हरम पर नजर पड़ते ही अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। हरम जाकर उनके सीने से लग गई और ज़ारों की तरह रोने लगी। हरम का सर सहलाकर उसे चुप करवाया। आपको पता है अम्मा, मुझे इनसे बहुत किसी अपने की फीलिंग आती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सच में मेरी जिगर की बेटी है। अम्मा मैं इस फरूक कुरैशी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं फरहान, मैं बस अपनी ज़िंदगी में उसे किसी अच्छे हाथ में सौंपना चाहती हूँ। अम्मा बस आप हुक्म करें। फरहान, अगर तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा लड़का हो, तुम तुम अभी मेरे सामने इसका निकाह पढ़वा दो। मैं उससे अपने सामने किसी अच्छे हाथ में सौंपना चाहती हूँ। अम्मा किसी को क्यों, मैं अभी अपने बेटे को बुलाता हूँ। अभी निकाह होगा और आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। फरहान खान ने शाहजेब को फ़ोन करके तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। बाबा आप ठीक तो हैं ना? मैं अभी आ रहा हूँ। शाहजेब, फरहान खान जैसे ही अपने बाबा को देखा भाग कर इनके गले लगा, इनका हाथ छू कर देखा जैसे यकीन करने की कोशिश की हो। शाह मेरी बात सुनो, मैं तुमको हमेशा अपने दोस्त शहबाज के बारे में बताया था ना कि जब हम अपने दुनिया में गुम हुए तो अचानक सब छूट गए। लेकिन अब मेरा शहबाज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी अम्मा और शहबाज की एक बेटी है। अम्मा से मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं इनकी पोती की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अम्मा अपने आंखों के सामने अपनी पोती का निकाह भी करना चाहती हैं और मैं इनसे आपका कह चुका हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने बाप की बात का मान रखते हैं या तोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना शाह, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन मैं अपने दोस्त और अम्मा के आगे सुरखरू होना चाहता हूँ। बाबा आपको पता है ना कि मुझे कैसे ब्लैकमेल करना है। बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता था लेकिन आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगा, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, मैं इस निकाह के बाद आप मुझे मेरा इस निकाह के बाद आप मुझसे उम्मीद मत करिएगा। शाहजेब फराह खान किस दिल से इस निकाह के लिए राजी हुआ था ये तो वही जानता था, लेकिन वहार किस्मत कब किसको कहाँ मिला दे कोई नहीं जानता, क्योंकि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं अपने लिए अच्छा समझ कर वो हमारे हक में अच्छा ना हो, लेकिन अल्लाह ताला जो नवाजते हैं वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन होता है। बस हम इंसान बहुत बाद में समझ पाते हैं। शाह तुम जमान को फ़ोन करो और कहो कि मौलवी साहब को लेकर अस्पताल पहुंचे। जी बाबा मैं अभी फ़ोन करता हूँ। जमान फौरन मौलवी साहब को लेकर अस्पताल पहुंचो। डोंट से अ वर्ड एंड गेट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। आ रहा हूँ सर। हरम
खान बिनते शहबाज खान, आपका निकाह शाहजेब खान बिनते फरहान खान से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कमरे में सिर्फ मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी, कबूल है। हरम अपनी आवाज़ को भी नहीं पहचान पा रही थी, मारे सदमे के। या रब्बुल इज़्ज़त, मैं किसी की ज़िंदगी में इस तरह ज़बरदस्ती शामिल हो गई हूँ। 3 बार कबूल है कहने की देर थी कि हर तरफ अस्पताल रूम में मुबारकबाद शुरू हो चुकी थी। शाह तो सिर्फ बुत बना बैठा था, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। निकाह सिर्फ 4 हरफों का मजमुआ नहीं है, बल्कि निकाह एक जिम्मेदारी है, एक वादा है, एक ऐसा वादा जो अपने आप से, अपने हम सफ़र से, 2 घरानों से और अपने रब्बुल आलमीन से हो जाता है। इसलिए इस रिश्ते का एहतराम कीजिए, इसलिए कि ये दुनिया का सबसे पाकीज़ा और नाजुक रिश्ता है। अम्मा तो जैसे निकाह का ही इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद वो अल्लाह ताला के पास चली गई। हरम को तो कुछ होश ही नहीं था कि वो कब क्या हुआ। बाबा घर चलें, बेटा हरम को लेकर जाएंगे। बाबा जो भी करना है जल्दी करें। हरम को लेकर फरहान खान वाला आ गए। हरम रो कर अम्मा की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो। मैं आपका दोस्त हूँ ना, लेकिन अब से मैं आपका बाबा भी हूँ, जैसे शाहजेब का बाबा हूँ, और आज से मेरी बेटी इस घर की मालकिन है। बेटा तुम्हें जो मन करे वो करना, लेकिन अब से रोना नहीं। रोना मुझे बहुत तकलीफ होगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बाबा तकलीफ में रहें? हराम अपनी गर्दन हिलाकर नहीं में जवाब दिया। हराम आप आराम कर लो, कल बात होगी। हराम दहाने साइड 2nd फ्लोर पर जो रूम है इसी में जाओ। ठीक है बाबा। अभी तक शाह का और हरम का आमना सामना नहीं हुआ था। शाह अभी तक घर आया ही नहीं था और वो अपनी जिंदगी के इस नए रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा था। रात के 2 बजे अपना कोट हाथ में लिए, बाल बिखरे अजीब से लुटे पुटे होलिये में घर लौटा, लेकिन जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुआ, सोफे पर अपने बाबा को अपना इंतजार करते पाकर शर्मिंदा हो गया। बाबा आप सो जाते। बेटा शाह बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। बेटा मैं जानता हूँ कि आपने मेरा मान रखा है, लेकिन एक बात जान लो, अब से आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक और रिश्ता जुड़ गया है, लेकिन आज से हरम आपके कमरे में ही रहेगी। बाबा अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कोई ज्यादती नहीं हो रही, और जाओ सो जाओ। शाहजेब जैसे ही रूम में आया तो देखा बेड पर फैलकर बीचों बीच अपनी दोनों बाहों को फैलाकर ऐसे सोई थी जैसे दुनिया फतह करके अपने कमरे में आकर सोई हो। वाह क्या अंदाज है! मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा रूम, यहाँ तक कि मेरा बेड, और शहजादी बनकर सोई ऐसे है जैसे हम लोग यहाँ के राया हों। अभी बताता हूँ। मेरा खून जलाकर इतने आराम से तो मैं भी सोने नहीं दूंगा। शाह दरवाजे पर खड़े होकर ताना बाना बुन रहा था। नाइट सूट निकालने के बहाने अलमारी का दरवाज़ा खोला और डोर जोर से बंद किया कि अगर कोई नशा आवर दवा भी खाकर सोया होता तो वो भी उठ जाता, लेकिन यहाँ तो हुरम मैडम थी जो घर घोड़े गधे क्या सारे जानवर बेचकर सोती थी। लेकिन ये बात तो शाहजेब फरहान खान को पता ही नहीं थी। यार अब मैं कहाँ फंस गया। शाह दुआ के अंदाज में हाथ उठाकर अ, कर कह रहा था। बात लेकर अपना नाइट सूट पहनकर स्टडी रूम में चला गया। यार अब मैं क्या करूं, कैसे इस रिश्ते से मैं इंसाफ करूंगा? मामा आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्यों किया आपने ऐसा? और आजाद से यकीन उठा दिया आपने। अगर कोई भी मेरी नफरत का निशाना बनाना, इसकी वजह आप होंगी, सिर्फ आप। नफरत है मुझे आपसे, बेइंतहा नफरत है। शाहजेब गुस्से से सामने पड़े कांच के टेबल पर हाथ मारकर हाथ खून से लहूलुहान हो गया। इस तकलीफ के आगे हाथ की तकलीफ कुछ भी नहीं थी। कुछ टूटने की आवाज पर हरम की आंख खुल गई। या अल्लाह, खैर क़यामत तो नहीं आ गई? और एक तो अलग जगह ऊपर से ये अजीब सी आवाज। हरम इधर उधर देख रही थी कि हुआ क्या है। जब समझ आया कि आवाज स्टडी रूम से आई है तो जाकर दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई, और जैसी ही नजर सामने शाह के खून से लहूलुहान हाथ पर पड़ी तो दौड़कर इसके पास जाकर देखने की कोशिश की। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की तो मुझसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शाहजेब का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल था। लेकिन आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, जाओ, मैं कह रहा हूँ कि जाओ। शाह चीख कर बोला। हरम वहां से भागते हुए नीचे आई और बाबा बाबा कहाँ हैं आप, जल्दी आए, शाह को चोट लगी है। तभी बाबा रूम में से भागते हुए आदल को पुकारने लगे।
منیر جو مالی کا کام کرتے ہیں، ان کا بیٹا عادل جو شاہ زیب کا ہر کام کرتا تھا۔ عادل اور فرحان خان جلدی سے شاہ کے روم میں گئے۔ شاہ زیب، یہ کیا حرکت ہے؟ عادل، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ اگلے دن صبح میں ڈائننگ ٹیبل پر اچھے سے تینوں لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ شاہ کے چہرے کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل رات کچھ ہوا بھی ہے۔ شاہ چپ چاپ آفس چلا گیا۔ بابا ایک بات پوچھوں، یہ جو شیر خان ہے، نہیں میرا مطلب شاہ زیب خان۔ ہاں ہاں، فرحان خان کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ شیر خان، واہ کیا نام رکھا ہے میری بیٹی نے۔ وہاں تو جب دیکھو دھاڑتے رہتے ہیں۔ بیٹا شاہ ایسا نہیں تھا، بہت زندہ دل تھا، لیکن حالات نے اسے ایسے پتھر دل بنا دیا۔ لیکن شیر کو تو شیرنی مل گئی ہے۔ آخر میں وہ مسکرا کر بولے، بابا کیا میں جان سکتی ہوں؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ فرحان خان ماضی میں پہنچ گئے۔ خانوالا میں فرحان خان اور ان کی بیوی فاریہ، ایک پیارا سا بیٹا شاہ زیب، ان کی زندگی کا کل افسانہ تھا۔ شاہ زیب 8 سال کا تھا، لیکن فاریہ کا راج دلارا تھا اور باہر دوستوں میں گھومنے کے بجائے فاریہ کا دوپٹہ پکڑ کر ہر جگہ گھومتا رہتا تھا۔ گھر میں جب بھی فرحت آپا رہنے آتی تھی، وہ فاریہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی تھی۔ اکثر فرحان خان میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور رفت آپا کو موقع مل جاتا تھا فاریہ کو ٹارچر کرنے کا۔ رفت انہیں چاہتی تھی کہ فاریہ اس گھر میں رہے۔ وہ خود اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی اور ایسا فاریہ کے رہتے رہتے عمر بھر رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن حد ہو گئی۔ رفت اپنے کسی جاننے والے سے ایک غنڈہ کرائے پر لے کر آئی اور ایسے کیا بات کہی کہ اپنے 8 سالہ جان سے پیارے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی بنا کسی کو بتائے۔ اس وقت فرحان خان میٹنگ کے سلسلے میں باہر تھے، لیکن جب گھر آئے تو ان کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ رفت کے مطابق فاریہ اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اپنی ماں کے نہ ملنے پر شاہ زیب بیمار پڑ گیا اور کتنے دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ بہت کوشش کے بعد سنبھلا، لیکن میں اس کے دماغ سے باہر نکال نہیں پایا کہ اس کی ماما بری نہیں ہے۔ کچھ تو تھا جو وہ مجھ سے بھی نہیں کہہ پاتا۔ اس کی رفت پھپھو کی بات اس کے دماغ میں ایسی بیٹھ گئی کہ آج تک نکل نہیں پائی۔ رورو سے نفرت کرنے کی یہی بس وجہ ہے۔ حرم کو ماضی بتاتے ان کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے محبت کی جھلک صاف دکھائی دی۔ بابا آپ ماما سے آج بھی محبت کرتے ہیں اور کیا انہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا، اگر کسی سے محبت ہو گئی ہو تو وہ کبھی کم نہیں ہوتی، اور میں آج بھی ڈھونڈتا ہوں۔ 18 سال ہو گئے، پتہ نہیں کہاں ہے اور مجھے کب ملے گی۔ کاش کہ میری فاریہ کو مجھے مل جائے تو میں اس کے بیٹے کی آنکھوں سے اس نفرت کی پٹی کو ہٹا کر پھر وہی محبت کی جوت جگا دیتا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا کیا سچ میں شاہ ماما سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا، صرف اوپری دکھاوا ہے نفرت کا، لیکن اپنی ماں سے جتنی محبت کرتا ہے نا، اتنا کسی اور سے نہیں کرتا۔ لیکن اپنی خول سے باہر نکلنے میں وقت لگے گا۔ بابا ہم مل کر کوشش کریں گے۔ 2 دنوں تک کے لیے عادل اپنے آبائی گاؤں چلا گیا تھا۔ بابا کے کہنے پر اسی بہانے شاہ اور حرم کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی۔ اسی دن بابا بھی اپنے دوست کے پاس چلے گئے۔ شاہ جلدی ہی وقت سے پہلے آفس سے آ گیا۔ جیسے ہی لانچ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حرم سونی چینل لگا کر دیکھ رہی تھی۔ عادل پانی لاؤ۔ عادل نہیں ہے، بابا نے چھٹی دے دی 2 دن کے لیے۔ حرم صوفے سے پیچھے مڑ کر شاہ کو جواب دیا۔ شاہ نے ایسے رسپانس دیا جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ شاہ وہاں سے سیدھا اپنے روم میں جانے لگا۔ سنیں، حرم نے آواز دی، لیکن شاہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ حرم اس کے روم میں پانی لے کر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پیچھے آنے کی؟ حرم شاہ کا منہ دیکھنے لگی۔ میری ہمت کی تو آپ بات ہی نہ کریں، میری اماں کہتی تھی میں شیرنی ہوں، شیرنی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ حرم ایک لفظ اور کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ زیب خان اتنی زور سے گرجا کہ حرم سہم گئی۔ حرم کو سہمانا ہی شاہ کا مقصد تھا کہ حرم قریب نہ آئے۔ اس کی باہوں کو پکڑ کر شاہ نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ حرم کے اسکارف کی پنس نکل گئی اور اس کی گردن پر زور سے چبھی اور اسے تکلیف سے دوچار کر گئی۔ حرم کے منہ سے بے اختیار تکلیف سے سی کی آواز نکل گئی۔
शाह छोड़े मुझे दर्द हो रहा है। हरम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शाहजेब बेरहम हो चुका था। हरम का स्कार्फ उसी खींचतानी में शाह के हाथ में आ गया। हरम आंखों में आंसू लिए शाह को देख रही थी। प्लीज मेरे स्कार्फ मुझे वापस करें। हरम सामने खड़े इस बेरहम शख्स को देखा। शाह हरम को देखकर अजीब सा मुस्कुराया था। हरम को एकदम खौफ ने जकड़ लिया। बिना स्कार्फ के खड़े हरम का दिल चाह जमीन फटे और इसमें समा जाए। इतनी बेइज्जती। हरम को इसकी जहनी हालत पर शुबा होने लगा। तुम अपने आप को शेरनी कहती हो ना, तो कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई, जो बड़े बड़े दावे किया करती थी। शाह हरम के इतने पास था कि उसकी सांसें हरम के चेहरे पर पड़ रही थी। हरम की जान हवा हो गई शाह का ये रूप देखकर। तुम मेरी बीवी हो, लेकिन एक बात जान लो कि तुम मुझ में और तो क्या किसी औरत में रति बराबर इंटरेस्ट नहीं है। आज से मुझसे दूर रहना। शाहराम को धक्का मारकर रूम से बाहर निकल गया। किसी भी लड़की की किस्मत का इंसार उसकी तालीम, उसकी खूबसूरती या उसके घरेलू स्टेटस या उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है जो उसका महरम होता है। और अपने महरम से मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत पाकीज़ा होती है और इश्क की मोराज पर छूने लगती है। अगले दिन रिफत पप्पो और उनकी बेटी नादिया आ गई और फरहान खान ने जैसे ही बताया शाह के निकाह का, दोनों लोगों का चेहरा फर्क हो गया। रिफत शाह के लिए अपनी बेटी का सोचे हुए थी। शाह तो शाह तो लड़कियों से बहुत एलर्जिक था, यहाँ तक कि नादिया उसकी कज़न है, उससे भी बात नहीं करता था। तो फिर शादी कैसे कर ली? रफ़त आपा, वो मेरा बेटा है, वो मेरा मान कभी टूटने नहीं देगा। फराह खान ने बहुत फ़ख्र से ये बात कही। फरहान, तुमने मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचा, किसी गैर को इस पर फ़ोकियत दी। आपा, नादिया को कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। और आपा, हरम कोई गैर नहीं, मेरी जिगरी यार की बेटी है और अब मेरी भी बेटी है। शाह को और हरम को फरहान खान ने अपने रूम में बुलाया। बेटा, अपनी पप्पो को कोई मौका मत देना अपने रिश्ते पर बात करने का। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जी बाबा। दोनों ने कोर्स में ये बात कही। फरहान खान मुस्कुराने लगे। हरम तो उसी दिन की शाह से डरी हुई थी। दोनों रूम में गए। हरम सोफे पर सो गई, जबकि शाह बेड पर सो गया। रात के 3 बजे शाह तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, नमाज अदा की और दुआ मांगने लगा। या रब्बुल आलमीन, मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। या रब इज़्ज़त, मैं क्या करूँ? तू ही रास्ता दिखाने वाला है, मुझे सही रास्ता दिखा। या अल्लाह, मेरी मामा को मेरे पास भेज दे। कौन कौन सी घड़ी कबूलियत की होती है, कोई नहीं जानता। अगले दिन से फरत पुप्पो का ड्रामा स्टार्ट हो गया। ए लड़की, मेरे लिए चाय बनाओ। हरम जैसी चाय बना कर लाई और उसके आगे रखा। इस चाय को रफत ने देखा भी नहीं और कह दिया कि चाय ऐसे बनती है, चाय गरम है। फुप्पो, अभी तो बनाकर लाई हूँ। रफत ने तुरंत हरम के हाथ पर गरम चाय गिरा दी। मारे तकलीफ के हरम के मुंह से चीख की सूरत में आवाज निकली, लेकिन नौकरों में कोई तो था नहीं कि देखता। लेकिन आदिल सब कुछ छुप कर देख रहा था और गुस्से में भी हो रहा था, क्योंकि सभी नौकरों को अपनी ये छोटी सी मालकिन अच्छी लगती थी। शाह ने उसके हाथ पर छाला देखा तो उसका दिल किया कि पूछे, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। जब हरम रात में सो गई तो हरम ने उसके हाथ पर शाह ने उसके हाथ पर बंधन लगा ले जाकर जमीन में बैठकर उसके हाथों पर लगाई। शाह को अगर कोई देख लेता तो ये नहीं कह पाता कितनी नफरत का इजहार इसी से किया है। शाह दवा लगा भी रहा था और बड़बड़ा भी रहा था। बहादुर तो ऐसे बनती है जैसे शेर, सच में शेरनी हो, लेकिन डरपोक भी बहुत है। पता नहीं कैसे इतना हाथ जला लिया। पागल लड़की, अपना ख्याल भी नहीं कर सकती। सुबह जब हरम की आंख खुली तो देखा कि हाथ पर बंधन लगी हुई है। या अल्लाह, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मेरे हाथ में इनके सिवा रूम में आकर दवा कौन लगा सकता है? शेर खान, सच में मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ। उस दिन जो मैंने आपका रूप देखा था वो सच था या ये सच है? हरम बेड पर सोए हुए शाह का चेहरा देखकर सोच रही थी, हाय ये सोए हुए कितने प्यारे लगते हैं, कहीं इनको मेरी नज़र ही ना लग जाए। हरम ने फौरन अपनी नज़रें फेर ली। अगर अपने महरम से मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत पाकीज़ा होती है और इश्क की महाराज को छूने लगती है। अचानक से फरहान खान और शाह दोनों लोगों को मीटिंग के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना था। इसी बीच हरम को पप्पू को
बताने में यानी कि भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों लोगों को गए अभी तीसरा दिन था कि तभी रिफ़त किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि तभी हरम इनकी बात सुनकर हैरान रह गई। अरे फ़ारिया को तो मैंने ही भगाया था और अब इस हरम की बारी है। मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ, इसको यहाँ टिकने नहीं दूँगी। अरे नहीं फ़ारिया अरे नहीं, फ़ारिया अपने बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अब तो उसका बेटा उससे इतनी नफ़रत करता है कि क्या बताऊँ। तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर हरम अंदर चली गई और ताली बजाकर कहा, वाह वाह पप्पू, बहुत अच्छा रिश्ता निभाया आपने। आने दें बाबा और शाह को, मैं सब कुछ इनसे उनको बताऊँगी। रिफ़त ने सोचा कि ये तो सच में बता देगी, तो इससे पहले मैं खुद ही उसे यहाँ से चलता कर दूँ। रिफ़त की नौकरों पर बहुत चलती थी, इसीलिए उन्होंने नौकरों को धमकी दी कि कोई फरहान या शाह को कुछ नहीं बताएगा, वरना नौकरी से निकाल दूँगी। और हरम के रुतबे का भी ख्याल नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। हरम कहती रह गई कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन रिफ़त ने उसकी एक नहीं सुनी। हरम गेट पर चुपचाप खड़ी थी। नौकरों में से किसी को इसकी मदद करने से मना किया गया था, लेकिन वॉचमैन ने अपनी कुर्सी छोड़कर उस पर हरम को बिठा दिया। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन हरम का इंतजार ही रहा कि बाबा या शाम में से कोई आ जाएगा, लेकिन इनको नहीं आना था, नहीं आए। आदिल और मुनीर काका चुपके से बाहर आए, हरम के पास गए और कहा, छोटी बीबी आप यहीं बैठी हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप चलें यहाँ से। बड़े साहब या छोटे बाबा को फ़ोन भी नहीं लगेगा कि कोई बताए इन्हें। पर काका मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो इस घर के अलावा कोई घर भी नहीं है और अम्मा वाले घर का अभी मुझे 30,000 किराया देना है, इसमें जा नहीं सकती। बेटा आदल अपने आबाई गाँव जा रहा है, आप उसके साथ चली जाएँ और यहाँ मैं मौका देखकर जब साहब आ जाएगा तो मैं इन्हें बता दूँगा। ठीक है काका, मुझे एक पेन और कागज़ चाहिए, मैं शाह को कुछ लिखकर आपके पास ज़मानत देकर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, अभी लाता हूँ। हरम ने शाह के लिए एक कागज़ लिखा, शेर खान, मैं ये बात आपके सामने कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मौका नहीं था। शाह, आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, लेकिन मुझे इस नफ़रत का मतलब समझ नहीं आया। आपको मैं बुरी लगती थी ना शाह, मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो गई थी ना, तो मैं अब जा रही हूँ, आप सुकून से रहिएगा। मैं आपकी ज़िंदगी से सिर्फ़ आपका नाम लेकर जाना चाहती हूँ। आप मुझसे अपना नाम कभी अलग मत करिएगा। मेरे लिए आपका नाम ही काफ़ी है। हमेशा खुश रहें। और एक बात, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सच में पूछिएगा क्या आपकी मम्मा सच में बुरी थी? आप अपना जवाब मिल जाएगा। शाह, अपने आस-पास नज़र रखें। ज़रूरी नहीं कि जो मोहब्बत का दिखावा करे वो मोहब्बत भी करता हो। और हाँ, जाते-जाते मैं अपने दिल की एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अम्मा कहती थी कि मोहब्बत तो अपने महरम से हो ही जाती है, पर तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब आ गई है। आप मेरे महरम हैं और मुझे आप अच्छे लगते हैं। ज़्यादा नाक गुस्से से फुलाने की ज़रूरत नहीं। दिल की बात दिल में नहीं रखते हैं। आपकी शेरनी। हरम खत को फोल्ड करके काका को पकड़ा दिया और कहा कि शाह को दे दीजिएगा। हरम खान वाला छोड़कर आदल के साथ उसके अबाई गांव चली गई। वहाँ एक छोटे से स्कूल की प्रिंसिपल से आदल के बाबा की पहचान थी, तो आदल हरम को उनके पास छोड़कर वापस खान वाला आ गया। वहाँ की प्रिंसिपल का नाम भी फारिया था और इनका एक 18 साल का बेटा भी था जिसका नाम शामिर था। वो अभी 12वीं में था। बहुत खुश दिल था शामिर। बहुत जल्द हरम उससे घुल मिल गई। फारिया आंटी और शामिर भी उन्हीं के स्कूल में हरम पढ़ाने लगी। उन्होंने हरम से उसके माजी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी। एक हफ्ते एक हफ्ते के ऑफिस टूर से जब फरहान खान और शाह आए तो घर का निज़ाम ही बदला हुआ था। आदल इनके लिए पानी लाया तो उन्होंने हरम के बारे में पूछा। अभी आदल कुछ बताता कि तभी रिफत रोने लगी। आपा क्या हुआ, हरम कहाँ है? फरहान, मैं क्या बताऊँ तुमको, हरम जो तुम्हारी बेटी और बहू थी ना, वो अपने मोहल्ले के किसी लड़के के साथ भाग गई। रिफत अपनी आंखों में मगरमच्छ मच्छी आंसू लिए हुए बहुत गमगीन हालत में बोल रही थी। खबरदार रिफत, अगर हरम के बारे में एक भी लफ्ज़ कहा तो। फरहान खान धारते हुए बोले। सारे नौकर भी इनके गुस्से से डर गए। शाह को तो सारी सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वक्त अपने आप को दोहरा रहा हो फिर से। बाबा, देखा आपने, मम्मा की तरह ये भी छोड़कर चली गई। शाह की आंखों में हल्की हल्की नमी सी थी। नहीं मेरी जान, ज़रूर कुछ बात हुई है। फरहान खान सारे नौकरों से पूछ भी रहे थे और इनकी शामत भी आई
हुई थी। बड़े साहब, मुझे आपसे और छोटे बाबा से एक बात करनी है अकेले में। मुनीर काका ने कहा। हाँ मुनीर, बोलो क्या बात है। साहब, आदल भी कुछ बताना चाहता है। साहब, बाबा बाबा, उस दिन जो हरम बीबी का हाथ जला था ना, वो खुद से नहीं जला था। रिफत बीबी ने उनके उनके हाथ पर रिफत बीबी ने उनसे चाय बनवाकर गर्म चाय उनके हाथ पर फेंक दी थी, इसलिए इनका हाथ जल गया था। मैं आपको बताना चाहता था, पर छोटी बीबी ने मना कर दिया था। आदल ने गर्दन झुकाकर सारी बात बता दी। मुनीर, तुम बताओ, हमारे जाने के बाद क्या हुआ। साहब, पता नहीं दोनों लोगों में क्या बात हुई थी, लेकिन मैंने इतना सुना था कि वो आपसे और छोटे बाबा से कुछ बताने का कह रही थी, इसलिए रिफत बेबी ने इन्हें घर से निकाल दिया। साहब, वो बाहर गेट पर सुबह से शाम तक आप दोनों लोगों का इंतज़ार करती रही, लेकिन आप लोग नहीं आए, इसलिए वो पता नहीं कहाँ चली गई। तभी मुनीर काका शाह के पास गए और उसे वो खत निकाल कर दिया जो हरम इन्हें देकर गई थी। छोटे बाबा, ये आपको छोटी बीबी देकर गई है। शाह का दिल पता नहीं क्यों ये यकीन करने पर राजी ही नहीं था कि हरम छोड़कर जा भी सकती है। शाह ने जल्दी से वो खत लिया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे खत पढ़ रहा था, इसकी आंखों में मोहब्बत के दीप रोशन हो गया, लेकिन अपनी कोताही पर रोना आने लगा। और इतना लंबा चौड़ा शाह आज सबर का दामन छोड़कर फूट फूट कर रोने लगा। फरहान खान ने उसे अपने सीने में भींच लिया और रोने दिया। बाबा, मुझे हरम चाहिए। बाबा, मैं उसे ढूंढूं ढूंढूं आने दे। उसे बड़ी शेरनी बनी फिरती थी ना, एक मुकाबला नहीं कर पाई। अब इतनी टेंशन वाले माहौल में भी फराह खान मुस्कुराने लगे। क्या शेरनी के शेर खान को अपनी शेरनी से मोहब्बत हो गई है। रोते रोते शाह इनके कंधे से लग के मुस्कुराने लगा। कहते हैं कि अगर किसी बीवी और शौहर में लड़ाई झगड़े के बाद भी फौरन उसकी कमी महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि मोहब्बत ने अपना दामन फैला लिया है। फारिया आंटी का घर शारमीर की वजह से चहकता रहता था। आप तो बहुत प्यारी हैं मामा, मुझे एक आप ही मिल गई। इसी में मीर अपनी मामा को भी घसीट लिया करता था। हरम हरम ने गौर किया कि फारिया आंटी स्कूल से आने के बाद एक रूम था जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस रूम को खोलकर वो 2 से 3 घंटे के लिए इसमें जाती थी, और जब उसमें से निकल कर आती तो इनका चेहरे पर कुर्ब गम, कुछ खोने की तकलीफ और रोई रोई आंखें होती थी। लेकिन हरम की हिम्मत ही नहीं होती थी कि इनसे कुछ पूछे। हरम सोचती थी कि क्या पता वो बुरा मान जाए। इसी तरह हफ्ते भर से हरम देखती रही, लेकिन एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और तजस्सुस के मारे उस रूम की को देखने का प्लान बना लिया कि आखिर आंटी इस रूम में ऐसे क्या करती हैं। रात में उसके रूम से चाबी लेकर उस रूम का जैसे ही दरवाज़ा खोला, धक से रह गई। ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे अल्लाह। या रब्बुल इज़्ज़त, तू ही करिश्मा दिखाने वाला है। चारों तरफ रूम में शाहजेब की तस्वीरें लगी हुई थी और कहीं कहीं फरहान खान की तस्वीर थी। अखबार में आई शाहजेब की तस्वीर जिसमें टॉप 1 बिजनेस टाइकून का अवार्ड मिल रहा था, वो तस्वीर फ्रेम करवा कर लगी हुई थी। तो क्या फारिया आंटी ही शाह की ममा है। अभी हरम सही से हैरान भी नहीं हुई थी कि तभी फिर से दरवाज़ा खुला और फारिया आंटी अंदर आई। हरम बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं। मामा। हरम मामा की गर्दन करते हुए इनके गले लग गई। फारिया परेशान होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मामा, ये तस्वीर आपके बेटे की है ना। हाँ बेटा, पर तुम्हें कैसे पता। हाँ मामा, ये मेरे शेर खान हैं, मतलब मेरे शौहर हैं। हरम अपने सर पर हाथ पे मार कर बोली। क्या। अब चौंकने की बारी फारिया की थी। बिना सोचे समझे उन्होंने हरम को अपनी माह में भेज लिया। हरम, मेरा बेटा कैसा है। बहुत ज्यादा सलील है मामा, फारिया मुस्कुराने लगी। हरम नफरत वाली बात इनसे छुपा गई, इसलिए कि इन्हें तकलीफ होती। दोनों लोग बाहर निकलकर सोफे पर बैठी और फारिया ने पहले हरम से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपना घर छोड़कर आना पड़ा। हरम ने सारी बात बता दी और ये भी बता दी कि बाबा को आप पर आज भी यकीन है और वो आपको आज भी ढूंढ रहे हैं। आप क्यों छोड़कर चली आई थी मामा। शाह इतने छोटे थे और बाबा आपसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर भी। नहीं बेटा, तुम पूरी सच्चाई नहीं जान रही हो। रिफात ने मुझे कहा था कि ये जो गुंडे आए हैं ना, इनसे वो मेरे शाह को मरवा देंगी अगर मैं घर छोड़कर नहीं गई तो, और मुझे बेइज्जत करने का इल्ज़ाम लगा देंगी। मैं अपने शाह के लिए, अपने जिगर के टुकड़े के लिए इससे इतनी दूर चली आई कि मेरा शाह जहाँ रहे सलामत रहे। जब मैं वहाँ से आई तो मैं अपनी रिपोर्ट छोड़कर आई थी। कैसी रिपोर्ट मामा। मैं उम्मीद से थी हमारे घर फिर से खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन इन खुशियों को रफत की बुरी नज़र खा गई। मामा, आपको पता है शाह मीर को जब भी मैं देखती थी मुझे इसमें शाहजेब की झलक आती थी। तो
तो कॉपी शाह में पड़ा है मारा अमीर। आप यहाँ कैसे आई मामा? मुनीर काका के ज़रिए आई थी और इन्हें मैंने कसम दी थी कि वो फरहान को बताएंगे नहीं। मुझे डर था अपने शाह का। रिफत बहुत बुरी औरत है, लेकिन मामा आपको बाबा से बताना चाहिए था। मीर सुनो। जी आपी, तुम किस पर गए हो? मैं बिल्कुल अपने भैया पर गया हूँ, एक आंख दबाकर मीर ने कहा। और आपके शौहर पर गया हूँ। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना? अरम ने एक धमुक्का उसके कंधे पर मारा। बदतमीज। सुनो मीर, क्या तुम्हें ये सब पता था? हाँ, मैं जब भी मम्मा से बाबा के बारे में पूछता था, मम्मा हमेशा मुझे बताती रहती थी, लेकिन जब भैया ने MBA टॉप किया तो इनकी तस्वीर न्यूज़ पर चलने लगी। जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरे भैया हैं। आप एक दिन मेरे बाबा और भैया मेरे पास आएंगे मुझे अपने पास ले जाने के लिए, देखिएगा इंशाल्लाह। मीर के लहजे में हसरत थी। हाँ ज़रूर। मेरे रूम में गया, उसे हर तरफ आराम चलती न फिरती नजर आ रही थी। मोहब्बत अचानक होती है, वो ना तो जगह दिखती है ना ही दिल दिखती है। और अपने महरम से मोहब्बत तो निकाह के बाद ही हो जाती है, और वही पाकीज़ा मोहब्बत कहलाती है। हरम यार, एक बार वापस आ जाओ, बहुत मोहब्बत दूंगा तुम्हें। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तुमने मेरा इंतज़ार किया, लेकिन मैं ही वक्त पर तुम तक पहुंच नहीं पाया। शायद नफल नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाया। या अल्लाह, मेरी हरम जहाँ भी हो उसकी हिफाजत करना, वो जहाँ भी हो ठीक हो। ऐ अल्लाह, उसे मुझे वापस दे दें या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी मम्मा भी ऐसी ही किसी हालात में मुझे छोड़कर गई होगी तो इन्हें भी मेरे पास भेज दें, आमीन। शाह हरम को दिल से याद कर रहा था, इसकी याद में बेताब था। आज शाह को आतिफ असलम का एक सॉन्ग अपने आप पर लग रहा था। सजदा करूं रब का जानम, आती है मन के तू दुआ वहाँ। हाँ, मुझे अपनी महरम से मोहब्बत हो गई, मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई। मेरी शेरनी वफादार है, लेकिन मैंने उसे इतना हक दिया ही नहीं था कि वो मुझे कुछ बता पाती। लेकिन एक बार वापस आ जाओ ज़िंदगी में, तो मैं इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा। हरम ने फारिया के फ़ोन से उनके बिना बताए फरहाना खान को फ़ोन कर दिया। हेलो, फरहान खान स्पीकिंग। बाबा अस्सलाम वालेकुम, मैं हरम हूँ। हरम बेटा, आप कहाँ हो? जल्दी बताओ। बाबा, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप वहाँ आ जाएं, के लिए आइएगा। आ रहा हूँ बेटा। फरहान, कहाँ जा रहे हो? रफ़त आपा, मैं आपसे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत हुआ। अब आपने मेरी हरम के साथ जो किया है ना, इसके बाद आप यहाँ से इज्जत से चली जाए। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, नादिया का जब मन करे वो आ सकती है। यहाँ नादिया का ननिहाल है और मैं उसका मामू हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। रिफत अपने घर चली गई। फरहान खान जैसे ही हरम के भेजी लोकेशन पर पहुंचे तो देखा कि एक छोटा सा घर है, लेकिन खूबसूरत सा है। फरहान खान सोचने लगे, हरम इस गांव में कैसे इतनी दूर पहुंची। फरहान खान ने उस घर की बेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और जो चेहरा देखने को मिला वो इन्हें हैरान कर गया। थोड़ी देर तक दोनों लोगों की नज़रें एक दूसरे पर से हट ही नहीं। सबसे पहले होश फारिया को आया। फरहान। फारिया के मुंह से बेसाख्ता निकला और फरहान खान तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। फरहान खान दौड़कर फारिया को अपने सीने में भींच लिया, कभी अलग ना होने के लिए। कितनी देर तक दोनों लोगों ने एक दूसरे को महसूस किया। फारे, ये कौन सा तरीका था छोड़कर जाने का? मुझे बताती तो सही कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, मैं उसे सुधारता। नहीं फरहान, आपकी कोई गलती नहीं थी, मैंने आपके लिए कुछ छोड़ा था, आपको मिला नहीं। नहीं फारिया। तभी शामिर दरवाजे पर आ गया। फारिया, ये कौन है? ये तो शाह की कार्बन कॉपी है। फरहान खान हैरान होकर शामिर को देख रहे थे। फरहान, ये हमारा बेटा शामिर है। फरहान ने कोई सवाल कोई शिकवा नहीं किया और मीर को बाहों में कैद कर लिया। मुझे माफ़ कर दो मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुम्हारा बचपन नहीं देख पाया, तुम्हारा लाड नहीं उठा पाया, पर कोई बात नहीं, अब ये सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। पापा, मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएंगे और भैया भी, लेकिन भैया नहीं आए ना। पापा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तुम्हारे भैया को पता नहीं है, नहीं तो ज़रूर आता। फरहान खान ने शामिर के यकीन को टूटने नहीं दिया। फारिया ने फरहान को सारी बात बता दी, रफ़त वाली।
कभी कभी अपने खास रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। फरहान खान, शामिर और फारिया हरम को खानवाला लेकर चले गए। सारे नौकर अपने मालिक की खुशी में खुश थे। तभी फरहान ने मुनीर काका को बुलाया और पूछा कि क्या आपको पता था कि फारिया कहाँ थी, और अगर पता था तो आपने इतने साल बताया क्यों नहीं? जी साहब, मैं ही इन्हें अपने घर ले गया था। उन्होंने मुझे अपनी और शाह बाबा की कसम दी थी। मैंने इस घर का नमक खाया था तो नमक हरामी कैसे करता? मैं मजबूर था साहब, अपनी कसम नहीं तोड़ सकता था। लेकिन जब वही चीज़ छोटी बीबी के साथ रिफत बीबी ने की तो मैंने जानबूझकर बड़ी बीबी के पास छोटी बीबी को भेज दिया कि किसी तरह आपको दोनों लोग मिल जाएं और मेरी कसम भी ना टूटे। मैं बहुत खुश हूँ साहब कि ये वही हुआ और बड़ी बीबी भी आ गई। मुनीर, आप बहुत वफादार हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं साहब, ऐसा तो ना कहें, हमारी जान आप पर कुर्बान। शाह ने जैसे ही घर में कदम रखा उसे कुछ चहल पहल जैसा महसूस हुआ। तभी नजर सामने उठी तो उठी ही रह गई। फारिया ने शाह को देखकर अपनी बाहें वाक कर दी। फारिया की आंखों में आंसू थे। अपना 8 साल के शाह को छोड़कर चली गई थी और आज शाह भरपूर नौजवान 26 साल का खूबसूरत मर्द बन चुका था। शाह ने जैसे ही अपनी माँ को सामने देखा, नहीं देखती शाह की सारी नाराजगी, नफरत कहीं झांस हुई और अपनी मामा की फैली हुई बाहों में समा गया। शाह और फारिया दोनों रुकता रो रहे थे। शाह अपनी मामा को अपने सीने से लगाए और आंखें इनके कंधे से लगाए इनसे शिकायत कर। इन्हें देखती शाह की सारी नाराजगी, शाह और फारिया दोनों रुकता रो रहे थे। शाह अपनी मामा को अपने सीने से लगाया और खुद इनके कंधे से लगा इनसे शिकायतें कर रहा था। मामा, आप मुझे छोड़कर चली गई थी ना, मैं आपका गुस्सा गुस्सा हर औरत पर निकालता रहा। मामा, मैं आपकी बहू के साथ बहुत इंसाफी कर चुका हूँ। कोई बात नहीं मेरे जान के टुकड़े, तुम मेरी बहू को मना लेना। भला शेर खान अपनी शेरनी को मना ना पाए, ऐसा हो सकता है? फारिया शाह के आंसू अपने हाथों से साफ करके मुस्कुरा कर कहने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। शाह जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अपने जैसा एक प्यारा सा लड़का खड़ा था। मामा, ये शाह के मारे खुशी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। फारिया ने शाह की मुश्किल आसान कर दी। हाँ बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तभी शामिर दौड़कर शाह के सीने से लग गया और शाह ने उसे अपने सीने में भेज लिया। भैया, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मेरे जिगर का टुकड़ा। तुम्हारे भैया को तो पता ही नहीं था कि कोई प्यारा सा गुड्डू है जो मुझे इतना प्यार करता है। कोई नहीं, अब मैं भी अपने गुड्डू से बहुत प्यार करूँगा। ओके मेरे लाडो, मुझसे कौन प्यार करेगा? तभी फरहान खान ने बीच में एंट्री दी। दोनों भाइयों ने आपस में मुंह देखा और एक साथ मामा प्यार करेंगी कहा और दौड़ लगा दी। बदमाशों, रुक जाओ, बताता हूँ। फरहान खान के पीछे दौड़े कहका लगाते हुए। शाह रूम में हरम को ढूंढता हुआ गया तो हरम बात ले कर निकली थी। शाह ने उसका हाथ पकड़कर झटका दिया कि हरम एकदम उसके सीने से आकर लग गई। ये ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। हरम ने रूठे रूठे अंदाज में कहा। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। शाह को हरम का ये रूठा रूठा अंदाज अच्छा लग रहा था। हरम की आंखों में आंसू थे और रोने की वजह से आंखें गुलाबी हो रही थीं। शाह को उसकी आंखों का गुलाबीपन तो अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शाह फौरन इन गुलाबी आंखों पर झुककर इनका उनको अकीदत से चूम लिया और झुककर अपने घुटनों के बल बैठ गया। हरम हैरान होकर शाह को देख रही थी कि वो शाह जो किसी के आगे नहीं झुका, वो मेरे सामने झुक गया। हरम, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ जो भी मैंने किया जानकर नहीं किया। मैं खुद भी बहुत टूटा हुआ था तो तुमको कैसे जोड़ता। लेकिन अब वादा रहा, खुद टूट जाऊंगा मगर तुम्हें कभी नहीं टूटने दूंगा। शाह जमीन पर बैठा हरम को देख रहा था। हरम अपने आंसुओं को रोकते हुए शाह के सामने जमीन पर बैठ गई। शाह ने अपनी बाहों को खोलकर हरम को बुलाया और हरम शाह की बाहों में समा गई। शाह ने उसे अपने सीने में जोर से भींच लिया और महसूस करने लगा। शाह के सीने से लगे ही उसने पूछा, शाह आप तो नफरत करते थे ना, फिर मोहब्बत? फिर अचानक मोहब्बत कैसे हो गई आपको मुझसे? मोहब्बत तो अचानक ही होती है। शाह ने उसके गालों को चूम कर कहा। शाह ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगाए एक अंदाज से शेर पढ़ा। हम दोस्तों से दोस्ती भी बेइंतहा करेंगे, हम दुश्मनों से दुश्मनी भी बेइंतहा करेंगे। हम नफरत या मोहब्बत की बात मत करना, हम नफरत भी बेइंतहा करेंगे, मोहब्बत भी बेइंतहा करेंगे। शाह, आपसे एक बात पूछूं? हरम ने गर्दन उठाकर शाह से कहा। शाह की नजरें उसके होंठों पर जाकर ठहर गईं।
शाह अचानक झुका और बहुत नरमी से हरम के होठों को चूम लिया। हरम शर्माने लगी और उसकी शर्ट में अपना चेहरा छुपाने लगी। तुम क्या पूछ रही थी? आपने मम्मा वाले घर का किराया दिया है था? हाँ, क्यों? मैं आपको वो 30,000 लौटा दूंगी, लेकिन हरम जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। फिर ये सब? लगता है तुमने मुझे माफ नहीं किया। नहीं शाह, मैं आपसे पैसे लेकर आपको लौटा दूंगी, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। तुम आप ही से लूंगी ना। हरम इतनी मासूमियत से कह रही थी कि शाह इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाया। हरम, तुम मुझे शेर खान कहती हो ना? कहीं मोगली वाला शेर खान तो नहीं कहती? शाह मुस्कुराते हुए हरम के गालों को सहलाकर पूछ रहा था। नहीं, मैं आपको शेर खान इसलिए कहती हूँ कि आप हमेशा धारते रहते हैं, और आप मोगली वाले शेर खान थोड़ी हैं। वो तो हमेशा हारता है, और आप मेरे शेर खान हैं, आपको हमेशा जीतना है। हरम की आंखों में एक मान था। शाह हैरान रह गया। का कौन कानपुर से फारूक इनके घर खानवाला में आन धमका, क्योंकि सब कुछ हरम के नाम था। इससे सब अपने नाम करने के लिए को सभी लोग लॉन्च में थे। फराह खान ने अपना वकील बुलवा लिया था। शाह कहीं गया हुआ था। इस पर साइन कर दो तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। फारूक गुस्से में हरम की तरफ बढ़ा कि तभी पीछे से हरम को किसी ने अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हरम डर के मारे जब ऊपर देखा तो शाह था, जो उसे सबके सामने सीने से लगाए खड़ा था। खबरदार जो हरम की तरफ आए तो मैं तुम्हारा पैर पैर तोड़ दूंगा। शाह इतनी जोर से दौड़ा कि फारूक डर गया। हरम को शाह की बाहों में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। हरम शाह की बाहों में ही घूम कर रह गई। अब हरम की बैग शाह की पीठ से टच कर रही थी। मैं साइन करने को तैयार हूँ। ये सारा हिसाब मैं अल्लाह पर छोड़ती हूँ। जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी तो तब वो हमें मिली नहीं, तो अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे शौहर के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। शाह गर्दन झुकाकर हरम को देख रहा था। हरम ने साइन करके फाइल वकील को पकड़ा दी। शाह को भी यही ठीक लगा। घर में नादिया आई हुई थी। वो सभी से अच्छे से बात कर रही थी। सब उसके साथ ठीक थे। हरम लॉन्च से गुजरकर किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उससे नादिया फोन पर किसी से बात करती हुई नजर आई। वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है, लेकिन मुझे इनका अंदाज अच्छा लगता है। मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या वो हुआ जो अगर मुझे छोटे घर में रहना पड़ा, मैं रह लूंगी। हाँ, वो भी मुझे चाहते हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाए। हरम नादिया की आधी अधूरी बात का कुछ और मतलब समझकर वहां से भाग गई। तो क्या मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं है? क्या शाह दूसरी शादी करेंगे और मुझे छोड़ देंगे? हाँ, ये सिर्फ एक वक्ती जज्बा है। वो बाबा की बात भी तो बहुत मानते हैं, इसलिए ये रिश्ता निभा रहे हैं। उससे पहले कि शाह मुझे छोड़े, मैं खुद इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, यही ठीक है। हरम बेताशा रोते हुए सोच रही थी। शाह को 2 दिन से हरम का रवैया कुछ अजीब लगा, जैसी कुछ सोच रही हो। शाह ने पूछा भी कि तो कुछ नहीं कह दिया। अगले दिन रात में हरम छोटे से बैग में 2 जोड़े कपड़े और शाह की तस्वीर रखकर जाने के लिए तैयार थी। शाह बेड पर नींद में सोया हुआ था। हरम खड़े होकर शाह को गौर से देख रही थी, और जैसे ही पलटी हरम का दुपट्टा का कोना खिंच गया। हरम सुन खड़ी रह गई। हरम, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? तभी शाह की आवाज आई। हरम ने पलट कर देखा तो शाह हरम का दुपट्टा का कोना पकड़े बिखरे बालों के साथ बेड पर बैठा था। शाह ने हरम को दुपट्टा पकड़कर खींचा। हरम किसी मोम की गुड़िया की तरह उसकी बाहों में समा गई। शाह ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर भेजा, हरम जरा रुकते हुए रोने लगी। हरम, मेरी जान, क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। हरम शाह की टी शर्ट को सीने से भेजे उसमें अपना मुंह देख किसी रोतू तोते की तरह शुरू हो गई। शाह, आप मुझे छोड़ देंगे ना? हरम, ये क्या पागलपन है? शाह जोर से दौड़ा। हरम ने डर कर सारी बात बता दी। शाह को तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही शाह को सारी बात समझ आई, शाह हरम को झटके से खुद से दूर किया। तुमने मुझे समझ क्या लिया है? हाँ, कि मैं जो मोहब्बत का तुमसे दावा कर रहा था वो ढोंग है। मारे सदमे के शाह से बोला ही नहीं गया। वो गुस्से से रूम से बाहर चला गया। शाह और हरम से 2 दिन से बोलचाल नहीं शाह और हरम के बीच 2 दिन से बोलचाल नहीं थी। शाह बहुत
गुस्सा था। फारिया को जब अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने हरम से पूछा और हरम ने रोते हुए सारी बात बता दी। फारिया ने अपना सर पीट लिया। हरम वो शाह की बात नहीं कर रही थी, ज़मान की बात कर रही थी। नादिया और ज़मान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और रफ़त आपा नहीं चाहती थी कि नादिया की शादी ज़मान से हो, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। ज़मान के घर से कल रिश्ता आ रहा है। हरम नादम हो रह गई, मामा अब क्या होगा? शेर खान तो अपने जलाली मूड में आ गए हैं, मैं कैसे इन्हें मनाऊंगी? शेरनी ने जो सब कुछ खराब किया है तो अपने शेर खान को वही मनाए। फारिया ने अपना पल्लू झाड़ लिया। हरम उसी दिन से शाह को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर खान मजाल है जो मान जाए। शाह जानकर परेशान कर रहा था कि हरम आगे से ऐसी गलती दोबारा ना करे। शाह को मनाते मनाते सुबह से शाम हो गई। शाह जब रूम में गया तो हरम भी पीछे से आ गई। शाह, हरम की आवाज़ में नमी थी। शाह का दिल किया कि पलट कर उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही शाह ने पलटकर पीछे देखा, हैरान रह गया। हरम जमीन पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। शाह की तो यही बस हो गई। शाह फौरन जमीन पर बैठकर इसके हाथों को अपने हाथों से चूमकर हरम को अपने सीने में जोर से भेज दिया। हरम, ये क्या हरकत थी? शाह हरम का चेहरा अपने हाथों में लिए पूछ रहा था। शाह, आप नाराज थे ना? मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। शाह, माफ। अभी हरम के लफ्ज उसके होंठों में थे कि तभी शाह उसके होंठों पर झुक कर अपनी अनाबी लब धमकते लबों से चूम कर हरम की बोलती बंद कर दी। हरम, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि कोई भी बात हो तो पूछ लेते हैं। हरम शाह का चेहरा देखती रह गई। इतनी मोहब्बत! शाह समझ गया कि हरम को यकीन करने में मुश्किल हो रही है। शाह ने हरम का चेहरा पकड़कर सारे चेहरे को अपने धमकते लबों से चूम लिया और यकीन दिलाया। हरम, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। भला कोई अपनी जिंदगी को भी दूर भगाता है? आई लव यू हरम, आई लव यू रियली। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझे कभी छोड़कर जाने की गलती मत करना। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी हो हरम। तुमने मुझे यकीन का मतलब सिखाया। हरम शाह का चेहरा देख रही थी और शाह हरम से जान, जिंदगी अब भी यकीन आया या नहीं? हरम शर्मा का शाह के सीने में छुप गई। किसी भी औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है। अगर मोहब्बत ना मिले तो चलेगा, लेकिन इज्जत के बगैर औरत औरत नहीं रहती।